if love can heal, why do people stop loving and why do breakups and divorce happen? So these are three things. Why do people stop loving is one why. Why Why? do breakups happen is second why. And why divorces happen third why. And I'm going to answer you all of them one by one. So let's understand first, why do people stop loving? We stop loving people when our love is not responded in the same way that I want the other person to respond. So when I go and tell you I love you, मेरी इच्छा होती है कि आप भी मेरे को पलट के बोलिए I love you. मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि मुझे आपके संग रात को खाना खाना अच्छा लगता है, तो मैं आपकी वेट करती रहती हूँ कि आप रात को आओगे तो हम खाना खाएंगे. पर एक दिन किसी वजह से अगर आप घर आने में लेट हो गई और आपके पार्टनर ने खाना खा लिया या आपके लवर ने खाना खा लिया, तो आप कहते हो मैं हमेशा वेट करती हूँ, तुम मेरी वेट नहीं कर सकते थे. क्या हुआ? जो तुम करती हो वही तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगला पर्सन भी करे. और वो होता that never happens. Because as I said, हम सबका अलग अलग लाइफ प्लान होता है. तुम्हारा हो सकता है मेरे लिए प्यार का शो करने का तरीका ये है कि जब मेरा हस्बैंड रात को आए तो मैं उसके साथ बैठ के खाना, ये मेरा तरीका है. जरूरी नहीं है कि मेरे हस्बैंड के लिए भी प्यार की यही परिभाषा है. हो सकता है उसके प्यार की परिभाषा ये है कि अगर लाइफ में कहीं पर भी मैं अकेली हूँ, मुझे कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो वो मेरे साथ उस समय खड़ा हो जाए. उसका प्यार का तरीका है भाई. वो रात को नहीं खाने की वेट करता, पर वो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा साथ देता है. That's love for him. Love for you is different. पर हम क्या करते हैं, जिस ढंग से हम लव को अंडरस्टैंड करते हैं वही हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं. और जब दूसरा अपना लव दिखाने का तरीका बदल देता है तो हम उसे प्यार करना बंद कर देते हैं. याद रखिएगा, लव किया नहीं जाता है, लव हैपेंस. इट्स फ्रॉम इनसाइड यू. You don't do it. You're not a doer in that. You are a being. You are a being in love. So to love somebody and to be in love with somebody, two different things. When you are in love with somebody, you don't have any expectations. When you love somebody, you are a doer, then there are expectations. So that's why we stop loving. Then conversation about breakups. When you talk about breakups, I have always said, and I maintain it with my own experiences, every relationship on this earth comes with an expiry date. Every. माँ बेटे का, भाई बहन का, फादर सन का, हस्बैंड वाइफ का, लवर का, हर एक का रिश्ता एक एक्सपायरी डेट से आता है, इंक्लूडिंग पीपल हु वर्क फॉर यू इन योर ऑफिस, योर डोमेस्टिक हेल्पर. They, every relationship comes with a expiry date. Expiry date will come, breakup will happen. Reason कुछ भी बन सकता है. Doesn't matter. It will go. That's about breakups. Now, third is about divorces. Divorces happen for many reasons. Divorces can happen when you have an issue with, you have a karmic issue with the institution of marriage. So you love your husband loves you. Everything is very good. But because you're not, you have come on this earth to have respect for the institution of marriage, because in one life you have not respected that marriage or a marriage. So now next life you have to have problems. You will have karmic issues with your married life. And many times I have seen relationships, marriages, divorces happen, relationship becomes very beautiful. This is karmic issue with the marriages. Marriage, the divorces can also happen because every marriage comes to teach us something. Complete maximum relationship resolution or karmic resolution happens with the marriages. ये जो हम लोग शादियों में गुण मिलाते हैं ना, तो लोग गुण मिलाते सोचते नहीं गुण मिलेंगे उतनी अच्छी शादी चलेगी. तो सभी तो मिलाते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है, शादी क्यों नहीं चल रही? गुण तो मिले थे. सो राम बिना गुणों के तो शादी नहीं होती है. या हमारे इंडिया में बिल्कुल. राम और सीता के 36 गुण मिलते थे. व्हाट वाज द मैरिड लाइफ? कैसी शादी थी उनकी? दे वर नेवर टुगेदर.
कभी इकट्ठे रहे नहीं। हाँ, डिवोर्स नहीं हुआ, आई एग्री विद यू। भाई सेपरेशन तो हुआ, शादी होते ही आप जंगल चले जाइए, वनवास में है, जंगल में हस्बैंड के साथ है, तो रावण आपको ले गया, राम आपको वहां से सारा वनवास का पीरियड लड़के वाइफ को वापस लेकर आए, हार्डली आप घर में लेकर आए थे कि आपने धोबी की बात सुनी और फिर सेपरेशन हो गया। वेयर आर यू टुगेदर? गुण तो मिले थे। व्हेन आई से कि शादी के समय इतने गुण मिले, इसका मतलब ये है कि दिस relationship with each other is going to teach you these many number of lessons. अगर मेरे 24 गुण मिलते हैं मेरे हस्बैंड से, तो मेरा हस्बैंड मेरे को 24 लर्न्स इस लाइफ में कंप्लीट कराएगा। और भाई, जो जितनी ज्यादा लर्निंग पूरी करवाएगा लाइफ में, उतनी ज्यादा सफरिंग होगी, क्योंकि हमारा माइंड एसोसिएट करता है लर्निंग को, पढ़ने को, सीखने को, नॉलेज को विद पेन। 2.5 साल का बच्चा हो तो आप स्कूल में डाल देते हैं, बच्चे को सेपरेशन हो गई माँ के साथ, बच्चे का एसोसिएशन हो गया है नॉलेज, एजुकेशन, सेपरेशन। हाउ कैन अ चाइल्ड बी हैप्पी लर्निंग? आप कैसे नॉलेज को एंजॉय करोगे? उसको कभी आप सेपरेशन से जोड़ देते हो, कभी आप उसको बच्चा एसोसिएशन पनिशमेंट से कर देता है, कभी हम उसको शेम के संग कर देते हैं। आप क्लास स्कूल में गए, आपको किसी ने बुली किया, आपको शेम किया, आपकी उससे एसोसिएशन हो गया। तो कितनी नेगेटिव चीजों से हमारा एजुकेशन और नॉलेज का एसोसिएशन होता है। और जब हम लोगों की शादी हुई, हमारा पार्टनर हमें लेसन्स पढ़ाने के लिए आ गया, तो नॉलेज देने के लिए आ गया, तो डेफिनेटली एसोसिएशन अच्छा नहीं है, इसलिए भी सफर। We are in pain in a relationship, in a marriage, and then the only thing you can do is भैया स्कूल से नाम कटवा लो, डिवोर्स। इसके अलावा डिवोर्सेस होते हैं, एक हस्बैंड ने आपको मान लीजिए 12 गुण सिखाने, और लाइफ में 20 साल आप इकट्ठे रहे और उसने 12 लेसन्स कंप्लीट कर दिए, अब आपके पास कुछ सिखाने के लिए नहीं है। Something or other will happen. Either divorce will happen, one of the partner will die, one of them will get separated, one of them will get transferred, something will happen, but lessons और है ही नहीं, तो आप ट्यूटर को क्या करोगे? What will you do with a teacher? You don't need a teacher. So what will you do? टीचर चला जाएगा, किसी और को ट्यूशन पढ़ाएगा, आप उस स्कूल को छोड़ दोगे, किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। सो ये सारी चीजें बहुत कार्मिक होती है, कंप्लीशन होती है। हम अपनी कार्मिक कंप्लीशन मैक्सिमम टाइम्स मैरिजेस के थ्रू करते हैं। सो डिवोर्स होना इज नथिंग बैड। व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? या दैट इज यस। आई थिंक रोहिणी जी हमारे साथ नहीं है, शायद इसी जो क्वेश्चंस के आपके कनेक्शन में बोल रही हैं, बट देयर आर कपल्स हु स्टे टुगेदर टिल लास्ट। आई थिंक जो आप बोल रही हैं उसी के कंसेंट में, उसी के कांटेक्ट में ही वो शायद रिप्लाई कर रही हैं आपको। Yeah, definitely. Because to the end they are teaching a lesson to each other. And please don't think that every relationship, every marriage has to be bad or painful. Not all. So मान लीजिए एक रिलेशनशिप है, एक लाइफ के अंदर आपका हस्बैंड है, आप हैं, और आप लोगों ने किसी वजह से एक दूसरे को बहुत कष्ट दिया, जान पूछ के या बिना जाने पूछे, बट आपने कष्ट दिया। नाउ नेक्स्ट लाइफ के लिए टाइम ऑफ डेथ बोथ ऑफ यू हैव डिसाइडेड अगले साल, अगली लाइफ में थोड़ा सा बहुत प्यार से जीना चाहते हैं, तो मैरिजेस डेफिनेटली बहुत प्यार से भी जी जाती है। राइट राइट, है ना? इट इज नॉट नेसेसरी प्यार से ना हो शादी। जी